की जानिब से आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जिसका इतलाक बीती शब से ही जारी है और आज रात के 12 बजे तक शाहराह पर ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला रामबन के ढलवास इलाके में एक तरफा सड़क के होने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को चलाने में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस सिलसिले में शाहराह पर जितने भी सिंगल वे जगह हैं उन्हें कुशादा करना है। इसके अलावा शाहराह पर मरम्मत के काम भी जारी हैं। आवाम से अपील है कि वो आज जम्मू श्रीनगर के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की अगली एडवाइजरी तक सफर न करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त आज मुअत्तल रहेगी। डलवास रामबन के करीब मरम्मत का काम शुरू किया गया है। रियासती ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में पहले ही बताया है कि आज इतवार यानी 22 अक्टूबर को ट्रैफिक जो है वो बंद रहेगा। नाशरी और नवीगेट टनल के दरमियान का ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और ऐसे में किसी भी मुसाफिर बरदार गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और चूंकि मरम्मत का काम शुरू किया गया है और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखा सकते हैं इस हाईवे पे जो गाड़ियाँ दिन भर रवां दवा होती थी, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ, ट्रक और दीगर जो गाड़ियां रवा दवा होती, लेकिन आज दिन भर इस हाईवे पर जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है मुसाफिरों के लिए कि वो इस हाईवे पे सफ़र ना करें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो ही शाम तक नई एडवाइजरी इशू होती है तो उसके बाद ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके इस हाईवे पे सफ़र करना शुरू करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे। और कठुआ शहर के करण नगर ब्लॉक में एक घर में घरेलू काम करने वाली 20 साल लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के घर वाले पंजाब के बाम्बियाल इलाके से जीएमसी कठुआ पहुंचे। अहले खाना ने शक का इजहार करते हुए कहा कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है और मुतालबा करते हैं कि मुलजिमीन को सराखों के पीछे डाला जाए। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ? ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 30 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ नहीं कर रही है, पुलिस ने भी थोड़ा तुम प्रेशर बनाओ भी पुलिस कार्रवाई करे। और बटपुरा कुंजर में खनिजों के अवैध खनन पर सख्ती करते हुए बारामूला पुलिस ने शनिवार को 3 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 टिप्पर भी जब्त कर लिए हैं। जेकेपीएस अशफाक आलम एसडीपीओ टनमर्ग की निगरानी में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद ही 3 टिप्पर जब्त किए और 3 चालकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम है एजाज अहमद डार, बिलाल अहमद और कादिर खान।
आरोपी अपने वाहनों सहित खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल पाए गए, जिसके उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन कुंजर में कानून के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। कश्मीर की लड़कियां अब खेलों के हर मैदान में लड़कों के शाना बशाना हिस्सा ले रही हैं और ये अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहती हैं। कश्मीर की लड़कियां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए खेलो इंडिया मिशन को एक अच्छा कदम समझती हैं। इनका कहना है कि यह मिशन इन्हें खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म इन्हें हासिल हो रहा है। ये लड़कियां एलजी मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने इस मिशन के तहत कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम बनाया। चूँकि पीएम की तरफ से खेलो इंडिया की जो मुहिम है, खास करके कश्मीर में उसमें मौका दिया जा रहा है कि सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। लड़कियों को इसमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो आगे आए और हम अपना जो हमें टैलेंट होता है वो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी दिखाते हैं। आगे जाके ये हमें बहुत ही काम आता है। कि पुराने ज़माने में लड़कियों को इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता था, तो लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे कश्मीर में स्पेशली लड़कियों को बहुत ही मौका दिया जा रहा है। इसमें एलजी साहब का बहुत ही बड़ा रोल है और हमारे वीसी सर का भी और हमारे एसोसिएट डीन जो है बकौल सर, उनका भी काफ़ी रोल है इसमें। तो और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया मुहिम जो चालू की है, उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली मतलब पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत ही मतलब प्रमोट किया जा रहा है। करिकुलर एक्टिविटी के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान है लड़कियों का भी। ये इनके लिए फिजिकली मेंटली ग्रोथ होती है। जो न्यू रेगुलेशन है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें इनके लिए एक रिजर्वेशन रखी गई है जिससे इनको जॉब मिल सकता है। आप अच्छा सिक्योर करेगी और इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, एम्पावर्ड हो जाएंगी। और वो टाइम चेंज हो चुका है जब लड़कियां घर के अंदर रहती थी। ये दिस इज़ द टाइम जब लड़कियां घर से बाहर करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है और अपने मुल्क का नाम रोशन करती है। 60 to 70% अब लड़कियां आ रही हैं। अब लड़कियां हर फील्ड में, ना कि सिर्फ एजुकेशन फील्ड में बल्कि हर फील्ड में आगे आ रही है। अब मैं देखता हूँ क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, चेस के मैदान में, कैरम के मैदान में, ऑल इंडोर एज वेल एज आउटडोर गेम्स में लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। और ये खुश आइंदा बात है कि एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लड़कियां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी से इम्प्रूव हो रही हैं और आगे जा रही हैं। और सयाहत जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। लाखों लोग इस शोबे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस शोबे से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रही है, लेकिन भलीसा में आज भी ऐसी जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं, जिससे खित्ते के समाजी व इक़्तिसादी मंजरनामे को फरोग मिलेगा। जिला डोडा का एक खूबसूरत इलाका है, वहाँ हम मौजूद है। तो जब इन जगहों पे इंसान आता है तो बड़ा दुख होता है। हमारी जो सरकारें गई हैं उन पे कि उन लोगों की नज़रों से आज तक जो ये इलाके ओझल रहे हैं, इन इलाकों को इग्नोर किया गया है। जो पिछली सरकारें हैं, यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इस इलाके के हैं, लेकिन वो भी इस इलाके को टूरिज़्म के अंडर लाने में नाकाम रहे। इतनी नेचुरल जगहें हैं, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, यहाँ लोग बहुत जब आते हैं तो बड़ा उनको सुकून मिलता है, बड़ी खुशी होती है। मैंने पूरी रियासत में जो है पूरे कश्मीर का भी दौरा किया, लेकिन जैसे कश्मीर में गुलमर्ग है और वहाँ सियाहती मकाम जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये इलाका उन इलाकों से कम है, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हमको लगा। मैं ये गुजारिश करता हूँ एलजी इंतज़ामिया से कि इस हमारे भलेस के बाशदार वाले इलाके को जो है टूरिज्म के अंडर जो है इसको प्रमोट किया जाए। यहाँ टूरिज्म आता है, लेकिन यहाँ आज तक जो है इसको सरकार की नज़रों से छुपाया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसको सरकार तक लाए। श्रीनगर में टूरिज्म है, भद्रवाह में भी टूरिज्म है, लेकिन हमारी भलेसा ऐसी बदकिस्मत की चीज़ है कि इसमें इतनी अच्छी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और ना इसको कोई टूरिज्म का तो नाम नहीं, इसमें कोई देखना भी नहीं चाहता है।
और इतनी अच्छी ये जिस जगह पे मैं अभी हूँ, इस जगह से चारों तरफ दिखाई देता है। इधर से किश्तवाड़ भी दिखाई देता है, भद्रवाह भी दिखाई देता है, और जो हिमाचल की बाउंड्री भी दिखाई देती है, पूरा विलेज दिखाई देता है। लेकिन इस जगह को भी गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है। ये जगह बाजदार है, लेकिन पूरी विलेज में हमारे ऐसे ही स्पॉट हैं कि अगर इन स्पॉटों पे देखा जाए, एलजी गवर्नमेंट अगर किसी टीम को या डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब को या किसी को भी बोले कि जाओ यार विजिट करो, तो ये हमारी जगह की जैसी कोई जगह हो ही नहीं सकती। नेचुरली ये खूब। और सियाती मकाम गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म तैयारियों को लेकर सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर सैयद आबिद रशीद शाह और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने मुश्तरका तौर पर तमाम मुतल्लिका महकमों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में सरमाही सयाहत और दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, चीफ इंजीनियर PDD R&B और MED कश्मीर के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैयद आबिद रशीद ने अफसरान को हिदायत दी कि वो गुलमर्ग में बुनियादी सहूलियात का ऑडिट करें। गुलमर्ग में सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इम्कानात तलाश करने पर जोर देते हुए सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो गुलमर्ग के इलाकों में ट्रैफिक की नकल हरकत के हमवार ज़ाब्ते, बिजली, पानी और टनमर्ग में पार्किंग के सहूलियात को भी यकीनी बनाएं। मजीद बर्फबारी से निपटने के लिए मशीनरी को तैयार रखें। साथ ही मौसम सरमा के दौरान तमाम इंतजाम की निगरानी के लिए मुतल्लिका महकमों पर मुश्तमिल मुश्तरका कंट्रोल रूम के क़याम की भी हिदायत जारी की गई। गुलमर्ग में आने वाले विंटर्स के लिए जो स्कीइंग सीजन है, जो विंटर सीजन है, उसकी तैयारी के लिए एक बड़ी जामिया मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसको मैंने चेयर किया, जिसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, डायरेक्टर टूरिज्म MD JKTDC और चीफ इंजीनियर हजरात PWD, PDD, मैकेनिकल वगैरह, और जितना भी हमारा यहाँ स्टाफ है, अमला है, टूरिज्म का है और बाकी तमाम महकमा जात का है, ताकि कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट के साथ गुलमर्ग के आने वाले टूरिस्ट सीजन को कामयान बनाया जा सके। हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस विंटर में टूरिस्ट रश बहुत हाई होगा, नंबर्स बहुत हाई होंगे, और उस सब की तैयारी में खा वो रोड क्लियरेंस हो, खा वो स्कीइंग की तैयारी हो, स्नो बेटिंग हो, खा वो मशीन्स प्रोक्योर करना हो या मशीन्स की मेंटेनेंस अपग्रेडेशन हो, या वो गंडोला के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग के मामलात हो, उन सब पे इलाबोरेट रिव्यू किया गया। और मैं खुशी से आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने पाया कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन हुआ केबल कार प्रोजेक्ट का, और उसके साथ साथ जितने भी टूरिज्म एसेट्स हैं, खा वो टूरिज्म डायरेक्टरेट के हैं, JKTDC के हैं, इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन मैंने किया और मैंने कोई अहकाम जारी किए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता हाजिर होंगे। मथुरा में स्कूल की गाड़ी और पिकअप की आमने सामने के टक्कर हादसे में बच्चों और गाड़ी ड्राइवर की आग को आई चोट। यमुना पुल के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। विंध्याचल दर्शन करने जाते वक्त हुआ हादसा। महोबा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जाबाज पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन। गोंडा में दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन का आयोजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा नाम। धर्मशाला में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। सकोल बटालियन में रखा गया था विशेष कार्यक्रम। इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कश्मीर में तालीम याफ्ता लड़कियां सरकार की मुतारिफ करदा स्कीमों का फायदा उठाकर अच्छा खासा रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का वसीला बन रही हैं।
ऐसी ही एक मिसाल पटन के कालसरी निहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली इशरत नबी की है। पीछे ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़कियां अपने अज़्म और हौसले से मुख्तलिफ मैदानों में अलग अलग तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करती हैं। कश्मीर में ख्वातीन का अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार के हुसूल के लिए खासा रुझान देखने को मिल रहा है। कालसरी निहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट डिग्री याफ्ता इशरत नबी इनमें सरफहरिस्त हैं। इशरत नबी ने सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें इशरत अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं। अब इशरत नबी ने एक और सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू की है, जिसके लिए इशरत ने ग्रीन हाउस भी बनाया है, जहां कई अकसाम की सब्जियां तैयार करके मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करती हैं। इशरत नबी इससे भी अच्छा खासा रोजगार हासिल कर रही हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर कैसे उगाना है, सीड्स कैसे उगानी है। फिर मैंने यूट्यूब यूज़ किया है, मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। फिर जब मैंने यूट्यूब यूज़ किया वहाँ पर मैंने देखा है कि सब्ज़ी मुख्तलिफ सब्ज़ी मैंने उगाई है। इसमें यूट्यूब में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पॉली ग्रीन हाउस है या हाईटेक है या ग्रीन हाउस है, उसमें सब्ज़ी उगानी है, उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट रहता है। फिर मैंने यूट्यूब से ही देखा है कि कैसे उगानी है सब्ज़ी। इशरत नबी अपने इन 2 यूनिट से कई लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही है। इशरत का कहना है कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़े यूनिट शुरू करेंगी, जिससे मजीद फायदा होगा। यहाँ पे जब जो काम करते हैं ये देखते हैं, इसको देखभाल करते हैं। वो 1-2 आदमी होते हैं, वो आते हैं हमें सुबह और शाम को वापस जाते हैं। वो भी महीने लेते हैं 10-12 हज़ार। मैं 4-5 लोगों को यहाँ पे रोज़गार देती हूँ। पशुपालन का जो देखभाल कर रहे हैं और जो इनका भी देखभाल कर रहे हैं। पॉली ग्रीन हाउस का अगला टारगेट है इंशाल्लाह में जो एग्रीकल्चर से हाईटेक आता है वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका इन्वेस्ट करना है 5 to 6 लाख। इंशाल्लाह मुझे अगला टारगेट वही है। और जो IDDS का है उसका मैं जो आगे जो अपग्रेड करूंगी वो उससे भी बड़ा हो जाए। इशरत नबी का कहना है कि इन्होंने 2021 में डेयरी फार्म शुरू किया और इन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया। इशरत के इस काम की सताइश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी किया। इशरत इसे अपने लिए बड़ा एजाज समझती हैं। पशुपालन की जब मैंने वो स्टार्ट किया है 2020 में, मैंने उनको उसका कॉन्स्ट्रक्ट स्टार्ट किया है। फिर 2021 मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है। जब PM मोदी ने मेरी बात मन की बात में की, ये मामूली सी बात नहीं है कि उसने मेरी बात मन की बात में की। उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। खुशी के साथ साथ मुझे डिफरेंट एरिया से कॉल आई थी कि आपका फॉर्म कैसे सक्सेसफुल हुआ है, हमें भी बोलिए। जैसे कि दिल्ली से मुझे कॉल्स आए थे, पंजाब से मुझे कॉल्स आए थे, डिफरेंट एरिया से मुझे कॉल्स आए थे। उस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश थी। इशरत नबी का कहना है कि ख्वातीन अब बाख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इन्होंने ख्वातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करके आगे बढ़ें। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सब लड़कियों को कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप भी कुछ करो, अपने दम पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि लड़कियों को थ्रेट होता है कि अगर हमने कुछ किया है पता नहीं क्या होता है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप करो, कोशिश करो। आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर से हर एक के पास आज थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वो कर रहे थे घर में, थोड़ा बहुत डिफरेंट करो और ज़्यादा करो। आप खुद देखो कि फ़ायदा कितना है इसमें। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि मुझे अच्छी आमदनी मिल रही है। एटलीस्ट 45,000 मंथली मेरी इनकम है। ऐसे कामयाब नौजवान लड़कियों की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है, ताकि दूसरी लड़कियों को भी रोजगार के हुसूल और दूसरों को रोजगार फराहम करने में तहरीक मिले। निहालपुरा पटन से ताल्लुक़ रखने वाली इशरत नबी एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने यानी सरकार की मुतारिफ करदा स्कीमों से फ़ायदा हासिल करके मुख्तलिफ यहाँ पे डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर का एक ऐसा यूनिट खड़ा कर दिया है, और जिनके ज़रिए से एक तो अपना रोज़गार हासिल कर रही है और दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए रोज़गार का वसीला बनी हुई है, और वो अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रही हैं। और ज़रूरत है, और ये इशरत नबी जो है और बाकी जिस तरह आज यानी ख़वातीन को बाख्तियार बनाने यानी वोमेन एम्पावरमेंट
डेवलपमेंट की बात हो रही है और इशरत नबी जो है वो मशाल राह बनी हुई है और तमाम बेरोजगार लड़कियों को ऐसी यानी इशरत नबी की तरफ देखकर इस तरह की यूनिट्स खड़ा कर सकते हैं और अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। सियाचिन की पहाड़ियों पर ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीर जवान गाउटे अक्षय लक्ष्मण को खिराज अकीदत पेश किया गया। फायर एंड फ्यूरी कोर के तमाम रैंक के अफसरान और जवानों ने शहीद अग्निवीर को खिराज अकीदत पेश किया। आपको बताते चलें कि शहीद अक्षय ऑपरेटर का काम संभालते थे। और क्वाकी बाजार खडोनी कुलगाम में मकामी लोगों ने एहतजाज के तौर पर सड़क के बीचों बीच बिजली का खराब ट्रांसफार्मर रख दिया, जिसके बायस ट्रैफिक में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर दिन ब दिन खराब हो रहा है, जिससे सर्दियों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर नाखेज तलबा व तालिबात के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें इन जिस्मानी तौर माजूर तलबा ने मुख्तलिफ खेल कूद जिसमें कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, चेस व दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीडीसी द्रकमोला, एडवोकेट आमना, बीडीसी हाई हामा सनाउल्लाह और महकमा तालीम के अफसरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन जावेद अहमद ने शिरकत की और बाद में जिस्मानी तौर नाखेज की काफी हौसला अफजाई भी की गई। फ्लैश मोड़ दिया था। समग्र शिक्षा ने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, क्योंकि हम भी खुश हुए जब हमने सुना कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये प्रोग्राम इसमें खेल कूद रखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों को हम वो एक्सपोजर दें ताकि ये नॉर्मल बच्चों से भी हट के कुछ करें। और हमारा आने का मकसद ये है कि जो ये बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम में है, किसी के टांग में प्रॉब्लम है, किसी के बाजू में, किसी को कोई बोल नहीं सकता है, किसी के लाइट नहीं है, इनकी हौसला अफजाई के हम आए हैं और इनको हौसला देने के लिए आए हैं। ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट समग्र शिक्षा के अंदर है। हमारे जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उनके लिए आज सपोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमने। और महकमे तालीम की जानिब से लालपुरा चिथलम पामपुर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन जहांगीर अहमद खांडे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल कय्यूम नदवी, जोनल एजुकेशन अफसर पामपुर के साथ साथ वालिदैन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम को बढ़ाए जाने पर तबादला ख्याल किया गया। दो चीजें उसमें पेरेंट आप डिस्कशन करना चाहिए। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब ये नहीं, एक्चुअली हम ये पेरेंट टीचर का एक रिश्ता होता है, तो ये एक मीट होती है एक किस्म की पेरेंट्स की जो हम बुलाते हैं स्कूल में, उनको जो है फीडबैक है उनसे लेते हैं बच्चों के बारे में और यहाँ से भी उनको फीडबैक देते हैं कि स्कूल में कैसे काम हो रहा है। तो ये रिलेशन आगे भी होनी चाहिए। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि ये जो है टीचर पेरेंट मीट ये हमेशा 26 तारीख को, हर एक महीने की 26 तारीख को होनी चाहिए। इन केस के अगर 26 तारीख को छुट्टी होगी तो नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे होगा वहाँ करनी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ताकि इसमें जो है जो कमियां रह जाती है वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमारे बच्चों में अगर उन्होंने कुछ देखा होगा वो शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, और टीचर्स अपने आगे मतलब जो है उन टीचर्स में उनको दूर करते हैं। मकसद और मुद्दा इसका यही होता है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, जो बच्चे की नशोनुमा है वो हम उसको कर दें। सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से पुलवामा के बुजुर्ग अफराद के लिए एक रोजा दौरे का इनेकाद किया गया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए पहली मरतबा टूर का एहतमाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 100 के बुजुर्ग शहरियों को टूर पर रवाना किया गया, जो कि श्रीनगर के मुख्तलिफ तारीखी जगहों और पार्कों का दौरा करेंगे।
इससे मिलेगा, ये इंटरेक्शन करेंगे एक तहसील से दूसरे तहसील के लोगों के साथ, ये सेहत अफ़ज़ा मुकामात पे जाएंगे, इस असिस्टेंस के साथ साथ इनको घूमने का मौका भी फराहम हो जाएगा। हम बहुत खुश हैं इसमें कि हम सीनियर सिटीज़नों का इनको बहुत ख्याल है कि हमें भी किसी जगह जाने का तमन्ना था, तो आज हमने वो पूरा कर लिया इनकी वसादत से, जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।